Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Oh hey Vaishnava Guru, Yara Saguru, Edase Guru, Oh hey Vaishnava Thakura, Doyara Sagara, Edase Karuna Kori. Gurudev Kripa Bindu Diya Karo e dashe Tina pe khayoti na Gurudev Gurudev Kripa Bindu Diya Karo e dashe Tina pe khayoti na সকল সহনে বল দিয়া কর সকল সহনে সকল সহনে বল দিয়া কর সকল সহনে নিজ মনে স্পৃহাহীন নিজ মান নিজ মানে স্পৃহাহীন নিজ মানে সকলে সমান করিতে শক্তি দেহনাথ যথা যথা সকলে সমান করিতে শক্তি দেহনাথ যথা যথা তবে তো গাইব হরি নাম সুখে তবে তো গাইব তবে তো গাইব হরি নাম সুখে তবে তো গাইব অপরাধ হবে হত আমার অপরাধ হবে হত গুরুদেব কৃপা বিন্দু দিয়া কর এ দাস তিনা পে খায়তে না তবে হেন কৃপা লোভিয়ায়ে জন কৃতার্থ হইবে নাথ
লোভিয়ায় জন কৃতার্থ হইবে নাথ। শক্তি বুদ্ধিহীন আমি অতিদিন, শক্তি বুদ্ধিহীন, শক্তি বুদ্ধিহীন আমি অতিদিন, শক্তি বুদ্ধিহীন। কর মরে আত্মসাৎ, আর কর মরে, কর মরে আত্মসাৎ। গুরুদেব কৃপা বিন্দু দিয়া কর এ দাস দিনাপেক্ষায় দিনা। গুরুদেব যোগ্যতা বিচারে কিছু নাহি পাই, তোমার করুণা সার। গুরুদেব যোগ্যতা বিচারে কিছু নাহি পাই, তোমার করুণা সার। করুণা না হইলে কাঁদিয়া কাঁদিয়া, করুণা না হইলে, করুণা না হইলে কাঁদিয়া কাঁদিয়া, করুণা না হইলে প্রাণ না রাখিব আর, প্রাণ না রাখিব, প্রাণ না রাখিব আর, প্রাণ না রাখিব। গুরুদেব কৃপা বিন্দু দিয়া কর এ দাসে দিনাপেক্ষায় দিনা। গুরুদেব জয় গুরুদেবা, জয় গুরুদেবা, ভক্তি চারু স্বামী গুরুদেবা জয়। জয় গুরুদেবা, গুরুদেবা, ভক্তি চারু স্বামী গুরুদেবা। জয় জয় প্রভুপাদ, 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 প্রভুপাদ। Generally, a great person is known for one thing that he's done in this world. But Bhakti Charu Swami was such a person that we can't even give a full list of all the wonderful services he did for Srila Prabhupada. First and foremost, he was the intimate, menial servant, secretary, and cook that Srila Prabhupada chose to have with him up until his last breath. Not only that, he was GBC and several times GBC chairman. He opened so many temples, so many disciples, and illustrious disciples who were able to do great service also for Srila Prabhupada. He traveled all over the world to preach. He translated all of Srila Prabhupada's books into Bengali, sitting right there with Srila Prabhupada, Prabhupada personally training him.
On and on the list goes. Cinematography, Prabhupada's entire life on Doordarshan, seen by millions and millions of people around the world. We can't even understand all of the wonderful things that Bhakti Swami did in just a short span of a few years, because sometimes it's said that you save the best for last. So Bhakti Swami, he joined Srila Prabhupada just in the last 2 years of Prabhupada's presence with us. And from that time onwards, he was able to excel practically all of the other disciples of Srila Prabhupada in all of the service that he did for him. Now, he wouldn't want to hear all of this. In his humility, of course, no one wants to be glorified in this way. But we all have to admit that he was one of the most glorious, most successful and accomplished disciples of Srila Prabhupada. And we're so honored to be able to honor him today on this Vyasa Puja day. And we pray that all together every year we can join to remember his wonderful qualities, his great services, and continue with his service, whether we're his disciples or his admirers, his godbrothers, godsisters, or the followers. And we should carry on the wonderful work that he did for Srila Prabhupada through book distribution, through opening of temples, making of devotees, and in that way, keep him as a reminder of what a super excellent, superb disciple can be for their spiritual master and follow in his footsteps. Thank you very much. Hare Krishna. Jai. आज महान आचार्य हमारे इस्कॉन के संस्थापक आचार्य के परम शिष्य भक्ति चारू महाराज जी का जन्म उत्सव मनाने के लिए हम सब यहाँ एकत्र हुए हैं। भक्ति चारू महाराज का जो जीवन रहा है बड़ा सदा रहा है। हमने बहुत बार यदा कदा संग किया है। उनकी ऊंची आवाज नहीं है, बिल्कुल बहुत विनम्र हैं। आप हम सबको सीखना चाहिए इन आचार्यों से कि जीवन में कितने गुरु के प्रति श्रद्धा, शरणागति और कितना विनम्र होना चाहिए। ये बहुत जरूरी है। इन लोगों ने केवल अपने प्रीचिंग से नहीं बल्कि अपने आचरण से भी शिक्षा दिया है। प्रभुपाद जी के अनन्य भक्त हैं, अनन्य सेवक हैं, प्रभुपाद जी के साथ रहते थे। प्रभुपाद जी भी यदि कुछ बात करना होता था तो बंगाली में इन्हीं से बात करते थे, भक्ति चारू महाराज से। अनेक प्रकार की बातें बताते थे महाराज। एक बार महाराज जी ने यात्रा निकाली थी मायापुर से। उनके साथ में लगभग 20 से 25 ब्रह्मचारी थे। तो महाराज यात्रा में उत्तर भारत में, यानी क्षमा करना, चंडीगढ़ के तरफ में महाराज जी की यात्रा थी। हम उन दिनों में वहीं थे। तो महाराज जी के साथ में काफ़ी ब्रह्मचारी थे। तो महाराज जी ने कहा कि हमें यहाँ पर रहना है कुछ दिन। हमने कहा कि महाराज जी आपका मंदिर है, हम लोग तो ऐसी सेवा कर रहे हैं यहाँ पर, आप जब तक यहाँ रहना चाहें जो सेवा है आप बताइए। तो महाराज जी मंगला आरती से लेकर के गुरु पूजा क्लास तक भक्तों के बीच में उपस्थित रहते थे। और यदि कुछ उन्हें गाना होता है ना, वैष्णव गीत इत्यादि याद भी हो तभी भी आगे ग्रंथ पुस्तक जरूर रखते थे वो। मैं एक दिन पूछा कि महाराज जी आपको तो याद है ये भजन, बहुत पुराना है, तो आप देख करके गा रहे थे। तो बोले कि नहीं, याद हो तभी भी ग्रंथ को देख के ही गाना चाहिए। ग्रंथ सामने होना चाहिए, समक्ष होना चाहिए, क्योंकि ग्रंथ के रूप में चैतन्य महाप्रभु विद्यमान है। तो यदि आपको कथा याद भी हो, आप जानते भी हो, तो ग्रंथ को जरूर सामने रखना है साथ में। ये शिक्षा दिया उन्होंने। तत्पश्चात महाराज जी ने कहा कि आज मैं कुकिंग करूँगा।
कुकिंग बहुत बढ़िया करते थे महाराज, और क्या क्या कब चलाना है वो भी जानते थे। पहले क्या देना चाहिए, पहले कौन कौन सा चीज को परोसना चाहिए, लास्ट में क्या करना चाहिए, सब सिखाते थे महाराज जी। और महाराज जी के साथ 3-4 ब्रह्मचारी थे, महाराज जी थे, मुख्य रूप से वही कुकिंग करते थे। महाराज ने कहा कि जितने आप लोगों के जानने वाले मेंबर हैं उनको भी बुलाओ आज। हम लोगों ने सबको कॉल किया, बुलाया, काफ़ी लोग आए, सबने प्रसाद खाया खूब बढ़िया से, और एक स्वर से सबने कहा कि प्रसाद किसने बनाया। तो हमने कहा कि महाराज जी ने बनाया प्रसाद। सब लोग महाराज जी के चरणों में जाके गिर पड़े कि ऐसा प्रसाद तो सदियों से हमारी पत्नी बनाते आ रही है, हमने खाया ही नहीं ऐसा प्रसाद। इतना बढ़िया प्रसाद महाराज जी बनाते थे और सबको अपने हाथ से परोसते थे, खुले बदन करके। बिल्कुल गर्मी का टाइम था और बहुत बढ़िया महाराज का स्वरूप था, सुंदर देह था। महाराज जी बहुत सुंदर दिख रहे थे भक्तों को खिलाते समय। ये बात हमें जीवन में सीखनी चाहिए। हरे कृष्ण। ओह धन्यवाद। ये बात हमें जीवन में जरूर सीखना चाहिए, कुर्सी लाना चाहिए, सीखना चाहिए। और बड़ों बड़ों के जीवन से हमें अपने जीवन में जरूर उतारना चाहिए, जरूर सीखना चाहिए। भक्ति चारू महाराज के एक ऑफरिंग है, कुछ शिष्य लोग प्रश्न कर रहे हैं भक्ति चारू महाराज जी से। बोले कि भक्ति चारू महाराज कह रहे थे कि आप गुरु को फूल देते हो, फल देते हो, वस्त्र देते हो, पैसा भी देते हो, ये ठीक है सब, लेकिन असली जो ऑफरिंग है, जो रियल ऑफरिंग है, वो ये है कि गुरु के प्रति आपकी शरणागति कितना सुंदर है, आप कितने शरण में हो, गुरु के बात में कितनी आप में गंभीरता है, आप कितने गंभीर हो, ये गुरु देखता है। तभी आपके जीवन में जितना आप गुरु के प्रति गंभीर होंगे, जीवन आपका सरल होगा, विनम्र होंगे, गुरु के प्रति श्रद्धा विश्वास होगा, उतना ही गुरु आपके प्रति आपके जो भी संदेश है वो भगवान को पहुंचा देता है। तो भक्ति चारू महाराज जी का आज आविर्भाव तिथि है, जन्म उत्सव है। मैं महाराज जी से प्रार्थना करता हूँ। अभी मैं देख रहा था काफ़ी समाधि बने हैं और काफ़ी अच्छा ढंग से बना है, सबको सजाया। ये लोग आपस में बातचीत भी करते होंगे ना, यहाँ पर सब मिल करके गए थोड़ी हैं, गुरु कभी मरता थोड़ी है, गुरु का शरीर बदलता है, गुरु कभी मरता नहीं है, गुरु का मृत्यु नहीं होता है। तो निश्चित रूप से आप हम सबको देख रहे हैं अपने इस्कॉन में कि कितना सुंदर ढंग से हम लोगों ने इसको प्रभुपाद जी को सजा के रखा। आज आप सब भी वैसा ही सजा के रखे हैं। आप सबका बहुत धन्यवाद। सदा सुखी रहें, आप सब स्वस्थ रहें। भक्ति चारू महाराज जी से प्रार्थना करता हूँ कि अपनी कृपा हम सब पर भी बना करके रखें। जय श्री कृष्ण। हरे कृष्ण। His Holiness Bhakti Charu Maharaj ki. So it's appropriate that the disciples and devotees gather to recognize the services of the faithful, enthusiastic, empowered servants of the Guru Parampara. Srila Prabhupada's representing for us from Chaitanya Mahaprabhu, 6 Goswamis, Srila Bhaktivinoda Thakur, Gaurkishore Das Babaji Maharaj, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati. Srila Prabhupada very kindly and mercifully engaged Bhakti Charu Maharaj in cooking and serving. Also, he recognized his qualities. So Prabhupada was expert in bringing out the Vaishnava qualities that are lying within us, covered over by this lower modes of material nature. Simply by in the presence of Prabhupada, one is eager to surrender
to Krishna through the Guru. Of course, Chaitanya Mahaprabhu, he's in everyone's heart, and somehow or other it's described that one must have performed some very pious activities to be even come in contact with devotees and devotional service. It's a rare thing, devotional service. But at the same time, Agyata Sukriti, Lord Chaitanya was still is very merciful, abundantly giving love for God. Srila Bhaktisiddhanta was pushing very vigorously under the order of Srila Bhaktivinoda Thakur and Goswamis. And Srila Prabhupada, he captured that mood of Srila Bhaktisiddhanta for the feeling compassion for the fallen conditioned souls who are suffering. So I just remember, especially when Bhakti Churu Maharaj was filming a Bhai Charan series, I'd be wandering around on my motorbike during festival time and running into Maharaj in different locations. And just the enthusiasm to carry out the preaching mission as instructed by Srila Prabhupada. And just his behavior and the way he would deal with his godbrothers and deal with even his classes were so philosophical and very eloquently presented. Always a pleasure to be with Maharaj. A Vaishnava is one who inspires one for Krishna consciousness. So when you see a Vaishnava who's carrying out the order of a spiritual master, it's very much enlivening for our own devotional service. And to glorify the devotees is even more important than glorifying Krishna. When Bhakti, or Swarup Damodar, not Swarup Damodar, Sarvabhauma Bhattacharya, the greatest logician and leader of the Mayavadi philosophy, somehow by the mercy of Chaitanya Mahaprabhu, when Chaitanya Mahaprabhu spoke Vedanta Sutra and revealed his forearm form, also his Sadbhuj form, before Sarvabhauma Bhattacharya became completely surrendered to Chaitanya Mahaprabhu. And when Gopinath Acharya, the brother-in-law of Sarvabhauma Bhattacharya, was glorifying Chaitanya Mahaprabhu, he said, no one else could have converted or changed the mind of Sarvabhauma Bhattacharya, but you did this wonderfully. But Chaitanya Mahaprabhu said, no, it's your credit, because by a devotee's desire, the Lord, he satisfied only by the mercy of the devotee that Sarvabhauma became converted or awakened to Krishna consciousness in a very personable way. And so Sarvabhauma Bhattacharya was very thankful to Gopinath Acharya, his brother-in-law. So we don't want to go to the higher Acharya. There's no higher or lower. They're all one. They're Krishna Shakti Vinana Hetara Pravartana. They're empowered by Krishna to spread Krishna consciousness. And if we're thinking, there's a whole chain of gurus in the parampara, and each and every one have a contribution for carrying out the message. And we're so fortunate to have the teachings of the Goswamis and the wonderful, powerful drive from Srila Bhaktisiddhanta Saraswati, what to speak of Srila Prabhupada. He often, out of humility, would feel, I don't know how all this is taking place by the mercy of my spiritual master. So it's described that if you take the order of the spiritual master very seriously and honor him, like we're trying to honor Krishna, same as Krishna, then knowledge is bestowed upon you. It's that we can't achieve bhakti or a pure devotional service by our own endeavor. Of course, we have to follow the endeavor to follow the order of the spiritual master, but by pleasing our spiritual master, pleasing Bhakti Churu Maharaj, then Krishna in the heart gives us knowledge and understanding by which we can come to him. And that's the mercy of the spiritual master, to have the opportunity to serve. Not only ceremoniously that we take a spiritual, I have my spiritual master, I'm very good. But we actually should render service to the spiritual master.
And only by bhakti, bhakti mama vijanati yavanyaschasmi tattvata. By the process of bhakti, only by that process he can awaken his love for Krishna. And this is our objective, to please the Vaishnavas, to please our spiritual master. And in this way, it'll be a proper understanding of glorification. Because Bhakti Charumaraj is representing Srila Prabhupada and representing Chaitanya Mahaprabhu, Krishna and Balaram. Bhakti Charu Maharaj ki. Hare Krishna. परम करुण बहु दुई जन निताई गौर चंद्र সবই অবতার সার শিরোমণি সবই অবতার সার শিরোমণি কেবল আনন্দ কন্দ সবই অবতার সার শিরোমণি কেবল আনন্দ কন্দ সবই অবতার ভজ ভজ বাই চৈতন্য নিতাই সুদৃঢ় বিশ্বাস করি ভজ ভজ ভাই ভজ ভজ ভাই চৈতন্য নিতাই সুদৃঢ় বিশ্বাস করি বিষয় ছাড়িয়া সেরা সে মজিয়া বিষয় ছাড়িয়া সেরা সে মজিয়া মুখে বল হরি হরি মুখে বল দেখো রে ভাই ত্রিভুবনে নাই এমন দয়ালো দাতা দেখো রে ভাই দেখো রে ভাই ত্রিভুবনে নাই এমন দয়ালো দাতা পশু পাখি জুড়ে পাষাণ বিদারে পশু পাখি জুড়ে পাষাণ বিদারে শুনি যার গুণ গাথা শুনি যার গুণ সংসারে মজিয়া রহিলি পড়িয়া সে পদি নহিল আস রহিলি পড়িয়া সে পদি নহিল আর আপন কর্ম পুঞ্জায়ে সমান আপন কর্ম পুঞ্জায়ে সমান
কহে লোচন দাস কহে লোচন আপন করম গুঞ্জায়ে সমন কহে লোচন দাস আপন করম পরম করুণ বহু দুই জন নিতাই গৌর চন্দ্র পরম করুণ সবই অবতার সার শিরোমণি কেবল আনন্দ খন্ড সবই অবতার সার শিরোমণি কেবল আনন্দ কেবল আনন্দ খন্ড কেবল আনন্দ খন্ড। भक्तचर महाराज आविर्भाव तिथि महामहोत्सव की जय। श्रील भक्तचर महाराज की जय। तो आज भक्तचर महाराज का जन्मदिन है, आविर्भाव तिथि महोत्सव। तो हम लोग सब बड़ा भाग्यशाली है, क्योंकि श्रीधाम वृंदावन में जो है महाराज का व्यास पूजा ऑफरिंग हो रहा है। और ये हमारा जो है सौभाग्य है कि आज उनका प्रसाद ग्रहण हमको भी मिलेगा खाने के लिए। तो तो ये मेरा भी सौभाग्य था, क्योंकि लास्ट में मैं यहाँ पुजारी था। उस समय महाराज का ये दीक्षा वो मतलब सन्यासी सेरेमनी हुई थी। प्रभुपाद ने लास्ट सन्यासी दिए थे और 4 लोगों को दिया था उस समय, और सभी का नाम एक ही समान रखा था एक्चुअली वृंदावन में कृष्ण बलराम मंदिर में। तो उसमें भक्तिचर महाराज, उनका नाम भक्तचर महाराज का नाम भक्तिचर स्वामी, फिर भक्ति चैतन्य स्वामी, भक्ति प्रेम स्वामी, भक्ति प्रभाव स्वामी। तो इस तरह से 4 सन्यासी एक ही दिन यहाँ पर कृष्ण बलराम मंदिर में सन्यासी दीक्षा हुई थी। तो मैं भी उसमें सम्मिलित था, मेरा भी सौभाग्य था उस समय। और महाराज जो है वहाँ कुकिंग करते थे प्रभुपाद का क्वार्टर में, और फिर हम लोग आरती, दोपहर की आरती हमारी हो जाती तब 1-1:30 बजे जो है, क्योंकि वहाँ पर अभी तो विंडो बंद है, उसमें विंडो खुला होता था प्रभुपाद भक्तचर महाराज की क्योंकि उस समय ज़्यादा भक्त नहीं होते थे, गर्मी के समय था तो भक्त लोग चले जाते थे। तो महाराज प्रभुपाद का जो रेमिनेंट लेके हम लोगों को देते थे, पुजारी लोगों को, ये प्रभुपाद का महाप्रसाद बोल के। तो इसलिए वो प्रसाद की हमको खाने को भक्तचर महाराज के द्वारा हमको मिला है। तो उसमें भी मैं अपना सौभाग्य मानता हूँ इस तरह से। तो भक्तचर महाराज ने और जो इतना अच्छा सेवा किया है प्रभुपाद जी के लिए, तो उतना अभी इस हिसाब से कोई भक्ति ये जो ये सीरियल बनाया उन्होंने अभय चरण, बहुत अलौकिक था। वृंदावन तो उस समय हम बम्बई में थे जब उन्होंने शूटिंग किया था, तो चैम्बूर में शूटिंग हुई थी। तो वहाँ शूटिंग हुई थी तो महाराज बहुत प्रयास कर रहे थे अभय चरण बनाने के लिए। बच्चों को बाहर के एक बच्चे को लेके ट्राई कर रहे थे, सब कर्मी बच्चे थे, कोई सक्सेस नहीं हुए। तो फिर बाद में अंत में मेरी बच्ची छोटी थी राधिका, तो उन्होंने बोला कि रिक्वेस्ट किया क्या प्रभु जी आपका बच्चा भी हमने सुना है, तो आप दे दीजिए, हम ट्राई करते हैं अभय चरण बनाने के लिए। तो उन्होंने हमारा बच्चे को भी लेके गए, छोटी बच्ची थी राधिका। तो उन्होंने जो है 2-3 ट्रायल किया, तो फिर बाद में वो सक्सेसफुल हो गए। जो चिकन सूप जो वोमिटिंग किया तो उसने किया था, राधिका ने, मेरी बेटी ने। तो इसीलिए तो प्रभुपाद जी भी ये चाहते थे कि मतलब अभय चरण जो है हमारे ग्रैंड चिल्ड्रन हो तो अच्छा है। तो प्रभुपाद जी चाहते थे कि तो भक्त के बच्चे के थ्रू ये होना चाहिए, मेरा जो अभय चरण प्रारंभ। तो इसलिए तो वो भी मैं बड़ा सौभाग्य मानता हूँ। फिर बाद में भक्तचर महाराज ने जो है
और दक्षिणा भी दिए, चेक बना के दिए दक्षिणा। तो इस तरह से महाराज हर समय मेरे साथ अच्छा व्यवहार करते थे। अभी जब चेयरमैन थे, चेयरमैन जब थे बम्बई में आते थे, तो उस समय तो मैंने गुरु शिव का जो फाइल लेके गए तो महाराज ने आंख बंद करके सिग्नेचर कर दिया अच्छी तरह से। तो ये महाराज का बहुत क्वालिटी था। महाराज बहुत दयालु थे, कृपालु थे। तो इसलिए मैं महाराज का बहुत बड़ा आभार मानता हूँ। तो और कहने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन अभी यहाँ पर और भी हमारे वरिष्ठ वैष्णव लोग हैं, सबको एक एक 5-5 मिनट चांस मिलना चाहिए। इसीलिए आज उनके महाराज का चरण कमल में मैं प्रणाम करते हुए महाराज का आशीर्वाद चाहता हूँ, ताकि मेरी भक्ति भी बढ़े आगे। जब तक मैं रहूँ इस संसार में, तो महाराज से ये मैं प्रार्थना करूँगा। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री भक्ति सिंह महाराज के शुभ आविर्भाव दिवस के अवसर पर हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और श्री भक्ति सिंह महाराज के दिव्य गुणावली का कीर्तन करते हुए हम अपने को शुद्ध करना चाहते हैं, क्योंकि वैष्णव का गुणगान करने से व्यक्ति का हृदय शुद्ध होता है और उसमें कृष्ण के प्रति प्रेम उत्पन्न होता है। तो श्री भक्ति सिंह महाराज हमारे अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत संघ के एक उज्जवल ज्योतिष के समान है, जो कि श्री प्रभुपाद के चरणों में, प्रभुपाद के यह लीला संवरण करने से शायद 1 वर्ष पहले ही आए। अधिक समय वो प्रभुपाद के संग में नहीं रहे, किंतु जितना समय भी रहे वो प्रभुपाद की निजी सेवा में संयुक्त रहे। जैसे प्रभु जी बता रहे थे कि श्री भक्ति सिंह महाराज 3 महीने के अंदर ये हरिनाम दीक्षा, ब्राह्मण दीक्षा, गायत्री दीक्षा और सन्यास दीक्षा प्रभुपाद ने तीनों दे दिया था हमको, क्योंकि प्रभुपाद जानते थे कि कौन कितना भक्ति मार्ग में अग्रसर हैं। और जबकि श्री भक्ति सिंह महाराज बंगाल से आए थे और साधारण रूप से बंगाली भक्तों में चैतन्य महाप्रभु की कृपा होती रहती है, इसलिए जब बंगाल के भक्त लोग कभी कीर्तन करते हैं तो बहुत सुंदर कीर्तन करते हैं। ये चैतन्य महाप्रभु की विशेष कृपा है उनके ऊपर। और श्री भक्ति स्वामी महाराज भी जब कीर्तन करते थे बहुत सुंदर कीर्तन करते थे, और केवल कीर्तन नहीं, बहुत अच्छा प्रवचन भी देते थे, क्योंकि शास्त्रों पर उनका बहुत अच्छा ज्ञान था। और प्रभुपाद जी ने उनको अपने ग्रंथों का अनुवाद करने के लिए भी दायित्व प्रदान किया था। इसलिए श्री भक्ति सिंह महाराज प्रभुपाद के ग्रंथों को बंगाली भाषा में उन्होंने अनुवाद भी किया है। और प्रभुपाद की निजी सेवा में वो प्रभुपाद जी के अंतिम समय वो प्रभुपाद जी की निजी सेवा में रहे हैं। प्रभुपाद जी के लिए वो भोजन प्रस्तुत करते थे और प्रभुपाद जी की निजी सेवा में रहते थे। तो इस प्रकार प्रभुपाद जी का सानिध्य उनको अत्यंत नज़दीकी से प्राप्त था। तो हम देखते हैं कि श्री भक्ति सिंह महाराज के जीवन में
वो कितने स्नेहालु, दूसरों के प्रति स्नेह भाव प्रकट करते थे और बहुत नम्र थे, विनीत स्वभाव वाले थे। और जिस किसी से मिलते थे वो दिल खोलकर हंसते हुए मिलते थे। तो इस प्रकार वो सभी को अपना बना लेते थे। तो जो कोई भी उनसे मिलता था वो महाराज के प्रति वो अति शीघ्र वो समर्पित हो जाता था, उनके प्रति श्रद्धा का भाव रखता था। और इस प्रकार हम देखते हैं कि श्री भक्तिचरण स्वामी महाराज ने अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत संघ के लिए बहुत बड़ा कार्य किया है। ऐसे एक तो उज्जैन में 10 महीने के अंदर इतना विशाल मंदिर खड़ा करना, ये सबसे बड़े आश्चर्य की बात है। और बहुत सुंदर मंदिर उन्होंने निर्मित किया है। उसके साथ साथ जैसे पंचगढ़ पर बता रहे थे अभय चरण सीरियल, तो प्रभुपाद के लिए उनके जीवनी पर आधारित यह अभय चरण सीरियल भक्तिचरण स्वामी महाराज ने बहुत परिश्रम करके बनाया है। और क्योंकि भक्तिचरण स्वामी महाराज का बाल्यावस्था से गीत, संगीत, नाटक इसके प्रति लगाव था। हमने देखा है कि जब श्री भक्तिचरण स्वामी महाराज कलकत्ता के जीबीसी हुए उस समय हम कलकत्ता मंदिर में थे और भक्तिचरण स्वामी महाराज बीबीटी में इरानी पार्क में रहते थे। वहाँ प्रभुपाद के ग्रंथों का अनुवाद करते थे। तो हर साल कलकत्ता मंदिर में जब जन्माष्टमी का प्रोग्राम होता था तो हम लोग मंदिर में ही जन्माष्टमी का प्रोग्राम बनाते थे। जैसे प्रवचन है, अभिषेक है, वो मंदिर के भीतर ही होता था। और कलकत्ता मंदिर बहुत छोटा था और उस समय रेंटेड बिल्डिंग पर था, बाद में उसको खरीदा गया। तो जब श्री भक्तिचरण स्वामी महाराज जीबीसी बने और उस समय उन्होंने हम लोगों से कहा कि इस साल हम जन्माष्टमी का प्रोग्राम मंदिर में नहीं, मंदिर के बाहर ये स्ट्रीट में बनाएंगे। तो ये 3C अल्बर्ट रोड उसको ब्लॉक किया गया था, म्यूनिसिपैलिटी से परमिशन लेके वो ब्लॉक किया गया था। वहीं हमारा स्टेज बना था स्ट्रीट पर, अल्बर्ट रोड पर। और पूरा जन्माष्टमी का प्रोग्राम केवल अभिषेक को छोड़कर स्ट्रीट पर पंडाल बना था, बहुत बड़ा पंडाल महाराज जी के निर्देशन में। और वहीं पर जन्माष्टमी का प्रोग्राम हुआ था और बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ था। और इस प्रोग्राम में महाराज चाहते थे कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रदर्शित करने के लिए, जिसमें नृत्य और नाटक भी सम्मिलित था। तो प्रभु श्री भक्तिचरण स्वामी महाराज ने हम लोगों को प्रेरित किया नाटक करने के लिए हिंदी में, हिंदी भाषा में। तो कृष्ण सुदामा का जो नाटक है वो मंचस्थ किया गया था वहाँ पर। और महाराज जी स्वयं इसमें भाग ले रहे थे नाटक आयोजन में। और जो नाटक में अभिनय करने वाले उनको चुनने के लिए भी महाराज स्वयं उसमें भाग ले रहे थे। तो बहुत सफल हुआ था वो कार्यक्रम। और महाराज जी का एक शिष्य थे चैतन्य दास, जिनकी सास जो है बहुत सुंदर रसोई बनाती थी और वो बीच बीच में महाराज को बुलाती थी उनके घर पर प्रसाद के लिए।
किंतु महाराज जी कभी भी अकेले नहीं जाते थे वहाँ प्रसाद लेने के लिए। और जब भी जाते थे हम लोगों को 3-4 भक्तों को साथ लेकर जाते थे प्रसाद बनाने के लिए, प्रसाद पाने के लिए। तो जब महाराज जी वहाँ रैनी पार्क में अवस्थान कर रहे थे, एक बार महाराज जी गए हुए थे अमेरिका, वहाँ अमेरिका में कोई मीटिंग थी। तो हम लोगों ने मंदिर से कार लेकर हम लोग गए एयरपोर्ट, और रात शायद 8 बजे करीब फ्लाइट लैंड किया। हम महाराज को लेकर सीधे रैनी पार्क गए। तो वहाँ पर उनका एक सेवक रहता था रैनी पार्क में। तो हम लोगों ने सोचा कि उन्होंने महाराज के लिए कुछ प्रसाद बनाया होगा रात में, किंतु उन्होंने कुछ नहीं बनाया था महाराज के लिए। तो महाराज जी ने जब देखा कि उनके लिए वहाँ प्रसाद नहीं है, तो महाराज जी ने कहा कि चलो हम मंदिर चलते हैं। और हम जानते हैं मंदिर में भी प्रसाद की व्यवस्था नहीं थी क्योंकि हम लोगों ने सोचा था कि वो रैनी पार्क में महाराज रहेंगे और वहीं उनके सेवक ने प्रसाद बनाया होगा। तो जब महाराज ने कहा कि चलो मंदिर में चलते हैं, और कलकत्ता मंदिर में जब 9 बज जाता है तो लाइट ऑफ हो जाती है, सब भक्त सो जाते हैं। क्योंकि उस समय भक्तों को बहुत जल्दी उठना पड़ता था। 2 बाथरूम थे भक्तों के लिए और 60 भक्त रहते थे। वो छत के ऊपर जो सीढ़ी का कमरा था उसमें 60 भक्त रहते थे, हम भी उनके साथ रहते थे। तो हमें तो 2:30 बजे उठना पड़ता था क्योंकि टॉयलेट जाने के लिए लाइन लगती थी, लंबी लाइन। तो 9 बजे से भक्त लोग सो जाते थे, और हमें पता था कि हम जब जाएंगे मंदिर में भक्त लोग सो गए होंगे। तब तक 9 बज चुका था। तो हम महाराज जी को लेकर आए, तो जब देखा कि सब भक्त लोग सोए हुए हैं, हमने लाइट जलाया, उठाया। तो हम लोग गए डेटी किचन में महाराज के लिए कुछ प्रसाद बनाने के लिए। तो हम लोग तुरंत जल्दीबाजी में सब्जी काटते थे। महाराज प्रभुपाद जी के कमरे में बैठे हुए थे। तो हम जब सब्जी काट रहे थे कुछ प्रसाद बनाने के लिए महाराज के लिए, तो महाराज जी उठकर चले आया प्रभुपाद जी के कमरे से। देखा कि हम लोग सब सब्जी काट रहे हैं। तो महाराज जी ने कहा कि ठीक है, तुम लोग सब्जी जल्दी काट कर दो, मैं प्रसाद बनाता हूँ। तो हमने कहा कि महाराज नहीं, आप इतनी दूरी से आए हैं, थके हुए होंगे, आप विश्राम कीजिए, हम आपको प्रसाद बना के देते हैं। तो महाराज ने कहा नहीं, तुम लोग मुझे कल सब्जी काट के दे दो, मैं प्रसाद बना दूँ। हमने सुना था महाराज जी बहुत अच्छा कुकिंग करते क्योंकि प्रभुपाद के लिए कुकिंग करते थे, और किंतु हमें पता नहीं था कि महाराज कैसा कुकिंग करते हैं कैसा। तो उस दिन महाराज ने स्वयं जब कुकिंग किया, तो हम लोगों ने फिर भोग लगाया और महाराज जी को बिठाया प्रसाद देने के लिए। तो महाराज जी ने कहा कि तुम लोग भी मेरे साथ बैठो। तो हम लोगों ने कहा कि नहीं महाराज, आप पहले लीजिए, हम लोग तो लेते नहीं रात में, फिर भी हम बाद में ले लेंगे। तो महाराज ने कहा नहीं, तुम लोग बैठो मेरे साथ। तो एक भक्त रहा सर्विस करने के लिए, हम भी महाराज के साथ बैठे, और महाराज ने बहुत जल्दी प्रसाद बना दिया था। इतनी जल्दी कि हम सोच नहीं सकते कि कितनी जल्दी से महाराज ने बनाया प्रसाद। तो जब हमने प्रसाद ग्रहण किया, वो इतना स्वादिष्ट था, तब हमें समझ में आया कि क्यों लोग कहते हैं कि महाराज जी बहुत अच्छा कुक है, अच्छा प्रसाद बनाते हैं, क्योंकि प्रभुपाद के लिए बनाते थे। और ऐसे बहुत सुंदर प्रसाद बनाते थे। हम लोगों ने टेस्ट किया उस दिन महाराज जी के हाथ का प्रसाद। तो इस प्रकार महाराज जी की प्रथम व्यास पूजा जो हुई, उस समय महाराज गुरु हुए, शायद 85 में या 86 में महाराज गुरु हुए। हाँ, जीबीसी और गुरु एक साथ हुए 85 में शायद।
तो महाराज की पहली व्यास पूजा हमने किया था कलकत्ता मंदिर में। उस समय महाराज जी के कोई एक ही शिष्य था। कलकत्ता में एक डॉक्टर थे, महाराज ने उनको दीक्षा दी थी, वो एक ही शिष्य थे। और पहली व्यास पूजा कलकत्ता मंदिर में हुई थी। फिर बाद में महाराज जी के अलग दूसरे शिष्य लोग भी हुए। तो उसके बाद फिर महाराज और दूसरे स्थानों का जीबीसी बने और वो भ्रमण करने लगे। और बाद में वो उज्जैन आए। उज्जैन में उनको जो जगह मिली वहाँ पर उन्होंने मंदिर बनाया। तो जो भी हो, तो हर दृष्टि से हम देखते हैं कि महाराज जी का जो संग है वो जो कोई भी उनके संस्पर्श में आता है वो भक्तिमय जीवन में अनुप्राणित होता है, इसमें कोई संदेह नहीं। तो आज इस अवसर पर और हम लोग श्री महाराज जी के चरणों में अपनी प्रणति निवेदन करते हुए उनसे प्रार्थना करते हैं कि महाराज जी हम पर कृपा करें, जिससे कि उनके कृपा से हमारा हृदय शुद्ध होकर भगवान श्री राधा कृष्ण के चरणों में लगा रहे और कृष्ण प्रेम प्राप्त हो, जिससे कि हमारा मनुष्य जन्म सार्थक हो जाए। हरे कृष्ण। जय श्री भक्तिधर स्वामी महाराज की जय। So as Lord Shiva, he was talking to his wife, saying that Aradhanana salvation, Vishnu Aradhana Param, Tasma Paratran Devi, I forgot the last line. Tadhyanam Smachana. So Lord Shiva said that of all kinds of worship, the topmost worship is the worship of Vishnu. But higher than the worship of Vishnu is the worship of Vaishnav, Tadhyana, who are the devotee of Vishnu. So to worship the devotees of Krishna is much more, it is very pleasing to Krishna if you worship his devotees. And especially if such devotees happen to be the higher devotees. You know that Srila Bhattacharya Maharaj is such a great higher caliber of Vaishnava. And one of the things, since the time I know him, was that he was always focused on the worship of the devotees. He always have great honor for the Vaishnavas. Even during his various Vesapujas, like in Mayapur especially, that time, rather than having devotees glorify him, he would rather have devotees to glorify Srila Prabhupada, whereby different devotees will come and simply glorify Srila Prabhupada. And Maharaj is, it was always very, 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 very personal with everyone, and also very, very great in what he does. I remember one time in South Africa, Maharaj, he had invited Bhattacharya Swami and myself for a lunch prashad. And that one he cooked himself. He made preparation himself, like a gourmet meal, pizza. It was excellent. And not only did he cook himself, he served it. I mean, he's a great Vaishnava, serving somebody like myself, who is so low. But, you know, so the quality of such great Vaishnavas is very, very rare. So it's actually a great advantage for us when we gather together to pay homage, to honor someone like Srila Bhakti Charu Maharaj, because by doing so, we actually get great benefit. It's a great benefit to worship the devotees, and especially those who are very, very dear to the Lord. It's a great benefit to worship them. So I
And I always feel myself that I have a great privilege to be able to say something, to Maharaj. His glories is unlimited, so whatever can come to my mind is what I can see. Because actually, I didn't even know that there's going to be some kind of a speech this afternoon, otherwise I would have prepared for it. But, the Vaishnavas are always very compassionate. They are full of mercy. So, Srila Bhattacharya Maharaj will always be merciful to somebody like myself. Jai Srila Bhattacharya Maharaj ki, Srila Prabhupada ki. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Bolo Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jayo Krishna Balaram, Jayo Krishna Balaram, Krishna Balaram, Jayo Krishna Balaram. Jayo Gauranitai, 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 Jayo Gauranitai. Lolita Vishaka Jayo Radhe Sham, Lolita Vishaka Jayo Radhe Sham. Prabhupada, 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 Prabhupada. Jayo Jayo Prabhupada, 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 Prabhupada. नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिचारु स्वामिनिति नामिने स्निग्धचेतु सुप्रणेत भग्मिनां चिरसाप्लुतं प्रभुपादगत प्राणो नौमि भक्तिचारुपदम् एष पुष्पाञ्जलि समर्पयामि, एष पुष्पाञ्जलि समर्पयामि, एष पुष्पाञ्जलि समर्पयामि। इस दिन भक्तिचार्य स्वामी महाराज आविर्भाव महोत्सव की, श्रीला प्रभुपाद की जय, समवेत गौर भक्तवृंद की जय, निताय गौर सीतानाथ प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। Samsara Dava Nalani Daloka
Janaya Karunyaganaganatvam Samsaradavadariraroga Janaya Karunyaganaganatvam Raptasya Kalyana Gunanavasya Vande Guru Shri Charanara